in the optical fiber case, so that we may discuss it out maybe in the next lecture. But meanwhile, in this today's lecture, we are focusing on the quantum mechanics part, because after optical fiber, we are going to start this only. So let's wait for 1 more minute, so that if participants are going to join, then let it be. Otherwise, we are going to start. Okay, so let me start. So before moving to the quantum part, one must ask again, what is the requirement of quantum mechanics? Okay, and before quantum mechanics, what was the case? I mean, is there any mechanics or physics available for explaining different phenomena? So all such things we need to look out in this case. Okay, so let me tell you a little bit about the classical mechanics side. So what are the things we have considered till now in the classical mechanics? So classical physics treated particles and waves. So you see, particles and wave as a distinct entities. Okay, that means there are two different quantities we considered in the classical physics. One is particles and the another one is wave. And you know that whenever a wave distributes, so whenever a wave propagates, so it distributes energy throughout the space in form of wavefront, air, and others. While in case of particle, the energy is confined in a small region of space. So all such things you know very well, classical physics and the quantum. And of course, there are many more experiments you have gone through in the earlier classes, 11, 12, which are explained with the help of classical physics side. But there are few experiments, okay, like photoelectric effect, black body radiation, Compton effect, okay, and optical spectra. So these are the events which cannot be explained in the classical mechanics. They fail to explain, and that is why we required another mechanics that can explain all such events which happened around 1900, in the starting of 1900. Okay, so first of all, let me clear you one more thing in context to this classical physics and the quantum mechanics part. So this classical physics or classical mechanics, both are same. So basically, this is valid only for the millimeter size particle. That means the particle size can be millimeter or more than that, where you can apply the classical physics. But if the particle size is less than millimeter, then classical mechanics is not valid at all. That we have seen in the experiments like photoelectric and all. So quantum mechanics, of course, that is the physics which is valid at the micro level. That means if you go less than milli size, then the next level will be micro. So quantum mechanics is applicable to the micro level particles. Okay, that experiments we are going through it one more time. But again, if you have done the tutorial number one, then definitely you may have gone through with the photoelectric effect and the uh, black body experiment. And even in some tutorial, you may have gone through with the Compton effect also, right? So that all are nothing but the experiments which can be explained with the quantum mechanics part. Now there is a general thing you need to ask: what is the requirement of this quantum mechanics then? One of the reason I told you the size part. Okay, so size, as I said, millimeter and micrometer. So that part is very clear. Now another important thing is in the quantum mechanics side. Okay, it is how you can frame it. If you know that if you know that classical physics is not able to explain certain phenomena, fine, you require some new mechanics that also you have identified as a quantum mechanics. But how, see, whenever you are opting for something new, you need to frame all the things again. For example, if classical mechanics is very well established, okay, Newton's law are applicable in all such events. Okay, there are equation of motions also there. So all such things are very well established in the classical physics part. Now, if you go for a new thing like quantum mechanics, okay, that was the thing in the early 1900, when scientists were looking for the new kind of physics, quantum physics. So if you want to go, like if you want to jump to an entire new thing,
Okay, you need to frame everything again, just like for a classical physics. Let me give you the classical point of view. So in classical physics, suppose if you have a particle, right? If you have a particle, then can you write down the energy of the particle? कर सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स में? Yes, sir. Can we write momentum Yes, of the sir. particle? Yes. ठीक है, so these are the parameters. Let me list it down one more time. If a classical particle is there, then you can write down the energy of that, you can write down the momentum of that, you can find out velocity, you can find out displacement. I mean, all such things you can easily find it out. Even you can apply Newton's law on that also. F equal to ma, and all such three laws are valid on the classical particle. ठीक है, and similar way you have the equation of motion by which you can find out acceleration also, velocity, displacement. I mean, all sort of things you can easily find it out with the classical mechanics part. Now if you want to jump to the next physics, that is quantum one, okay, which is new comparatively at the time. Okay, so then again you need to describe all such things for the micro size particle. For millimeter size particle or more than that, I already have the classical physics, right, which can be explained. All such things I can find out with that. But if you go for the micro level, then again I need to look out all the things. What is the energy of that particle? What is the momentum? Okay, and how the micro size particle is moving in a certain environment. Okay, what is the energy exactly? So there are various things which again you need to formulate in the quantum mechanics part. Are you getting the idea? क्लासिकल फिजिक्स इज वेल Yes. एस्टेब्लिश्ड, सारी चीजें हैं मेरे पास. बट इफ यू आर जंपिंग फॉर ए न्यू थिंग, क्वांटम फिजिक्स विच इज वैलिड फॉर द माइक्रो लेवल, ओके, देन यू नीड टू लुक आउट अगेन फॉर ऑल सच थिंग्स इन प्रॉपर डेप्थ, कि उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. कौन से लेवल के लिए? माइक्रो लेवल के लिए. मिली के लिए तो सारा है हमारे पास. Why I am discussing all such things with you people is because this quantum mechanics part, people, let me tell you the honest part. 90%, 90% people are finding it very difficult to grasp it. Okay, this is the honest review which I am providing to you people. In general, I have collected from several other classes also. 90% of the people are finding it very difficult to grasp. Sometimes it is okay also, because quantum mechanics is a very vast subject, and it requires, if you want to know it completely, then it requires at least 3 semester course. ठीक है, एक एक कोर्स 3 सेमेस्टर तक आप पढ़ोगे, यानी कि 4 4 क्रेडिट के 3 कोर्स आप पढ़ लो. इतना बड़ा कोर्स है पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर समराइजिंग दिस क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट, ओके, in just 2 to 3 lectures. So sometimes you require very much grasp a very much crisp content so that you can have better understanding about the same. Anyway, so coming to back to the again, my purpose over here is to describe everything in possible time period. 2 से 3 लेक्चर है हमारे पास. In that we need to cover entire thing related to the quantum mechanics which is there in the syllabus. Fine. So I have proposed the idea to you people that quantum mechanics, we are going with this because it helps us to explain certain phenomena which happened around 1900 or after that. ठीक है, और क्यों? क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, मैकेनिक्स को अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, again, what are the necessary requirement again if you look at in the quantum mechanics side. एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके पास आपको देता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द robotics? Yes, I sir. am. So Many, sir. many, right? There are many people, right? And yesterday there was one session also on the MATLAB. So those who have attended, they can realize it, because if you go with the robotics part or any other things, then definitely you require some software to use. ठीक है, MATLAB है, और उसके जैसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं फील्ड के अंदर. सो यू रिक्वायर्ड ऑल सच नॉलेज ऑफ सच टेक्निकल कंटेंट. फाइन, दैट इज वन थिंग. वो ऑलरेडी हमने कल ओवरव्यू दिया था एक लेक्चर रख के. जो जिसने मिस किया कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं MATLAB पे, यू कैन इजीली फाइंड आउट. So that was the thing. Now again, let me put you one more particular case in front of you. Suppose, as you said, you many of you are interested in that robotics part, right? निर्मा की भी कई सारी टीम्स होती है. आपने इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जीत के आते हैं, बाहर जाते हैं, टीम जाती है हमारी बाहर, राइट? कहीं पार्टिसिपेट करते हैं एंड वी आर विनिंग, समटाइम्स वी आर गेटिंग सेकंड सेकंड नंबर. आई मीन देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स. देखा है कुछ भी ऐसा?
Yes, sir. Yes, Robocon. sir. Yes, sir. रोबोकॉन, यस रोबोकॉन है, राइट। बहुत सारे इवेंट्स है अलग अलग टाइम टू टाइम, जिसमें अभी आप लोग का स्टार्टिंग लेवल है, यू आर लर्निंग एंड देन मे बी इन द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यू आर गोइंग टू start working with proper time. Okay, so that's the thing, fine. So now let me tell you one thing. If your seniors are already working on that device, okay, whatever the task, the challenges they are getting in robocon event or some different events also, atv etc. So look at here, if that kind of work you also have to do it, because when you come to the higher stage in higher semesters, now you people will be senior and you have to do the same task, you have to participate in some events and like that. Now let me tell you very interesting thing in front of you. अगर वो जो सारा सिस्टम था आपके सीनियर्स ने जो अभी बनाया है, जिससे वो जीत के आ रहे हैं विनिंग वाला, ठीक है, और हर बार हैकेथॉन में जा, कई बार रोबोकॉन का जो इवेंट होता है उसमें आप जाते हो, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर चेंजिंग द थीम. Every year they are changing the theme, sometimes they are keeping on one particular topic, sometimes they are keeping on another one. So थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं थीम को, अदरवाइज बेस कंटेंट तो वही है. तो whatever the content or the device which your seniors have designed at this moment, जो उन्हें विनिंग वीक विन करके भी आए होंगे इवेंट्स में, फाइन. अगर वो आपको बोले कि नहीं, ये जो हमारा मॉडल है वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर टेस्टिंग एंड अदर पर्पसेस और मॉडिफिकेशन, and they told you that you need to start from the scratch, so will it be possible for you people to do it? I mean it is possible but it requires lot of time. ठीक है, सम टाइम हर बार क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास है तो उसमें आप प्लस माइनस करके थोड़ा सा ऐड करके मॉडिफाई करके यू कैन मेक ए सिस्टम रेडी फॉर द चैलेंजेस. बट आपको एंटायरली पूरा अभी बोल दो कि अभी आपको फिर से स्क्रैच से पूरा बनाना है एवरीथिंग, of course आप बना सकते हो, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, यू कैन बिल्ड अप नो डाउट, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट द सेम. सो व्हाट इज द प्रेफरेबल वे? आप क्या प्रेफर करोगे अगर आप आगे जाते हो, आपको रेवोकॉन जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है? सो व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, पूरा फिर से बनाना है स्क्रैच से, और एल्स यू गेट सम बेसिक मॉडल एंड देन उसके ऊपर आप काम करके उसको कस्टमाइज करना प्रेफर करोगे? Sir, Basic basic model. model only. राइट, बेसिक मॉडल लेंगे. क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी फॉर यू पीपल, क्योंकि ऑलरेडी सम लिटरेचर इज अवेलेबल, सम कंटेंट विल बी अवेलेबल विच योर सीनियर्स will guide to you. ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट ऐसे काम करता है, समथिंग सम इंफॉर्मेशन यू विल गेट. सो वी आर प्रेफरिंग फॉर द बेसिक वन, कुछ मॉडल है एंड देन विल कस्टमाइज इट. सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट आल्सो. एंड एज यू नो, my purpose is to relate everything with the real life. So just like you said, थोड़ा बेसिक मिल जाता है then it is much better. So similarly in the quantum physics also, if you know, if you can utilize the base of classical physics, right, then the tasks are going to be very easy. कैसे utilize करते हैं? I mean all the things which are applicable in the classical physics. ठीक है, like if a particle is there, then you need to find out energy, you need to find out momentum, velocity, I mean all sort of things जो भी possible आपसे हो सकता है. Same thing you can find out in the quantum mechanics also. और वो भी कैसे करेंगे? With the help of classical mechanics. ठीक है, so we are not going to discard classical mechanics completely, no, we are taking the help of existing system and then we are modifying as per the requirement. ठीक है, क्या मॉडिफाई होता है, कैसे करते हैं, दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस कमिंग लेक्चर. So let me move it. I hope now the idea is very clear. Quantum mechanics का क्या पर्पस था. And here you can see the breakdown of classical physics. So this part already we have discussed so many times in the tutorial, so I will not go through it. Otherwise you see black body radiation, it is written, optical spectra, X-rays, discovery of X-rays. So as I said, everything happened around 1900. थोड़ा सा 10 साल पहले 10 साल बाद, उसी के वो पीरियड में ही सारी कुछ चीजें आपकी चेंजेस हुए थे, जहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होना स्टार्ट हुआ. Then this theory was coming into the picture that the charge is quantized. This is very popular concept, you may have gone through in the earlier classes also, 11 12, that this charge is quantized. Okay, and then photoelectric effect, based on that we have explained photoelectric effect, specific heat, optical spectra. So all such events I'm not going to explain again, because these things we have covered in the tutorial mainly. ठीक है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट दैट लाइमर बामर सीरीज जो था ना, अपने बामर सीरीज है, लाइमर सीरीज है, पास्टल सीरीज है, सो दैट फॉर्म्स द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा. ठीक है, then this black body curve, this also we have discussed, so I'm not going to cover it again over here. This is the part. Okay, let me move it further.
this curve, right? And we explained this all such things, Wien curve, okay, then Rayleigh Jeans curve, and then experimental curve looks like this. So this is just for info. We are skipping over here. Now let's come to this Planck's hypothesis. So Planck's quantum theory, a Planck's hypothesis. So what he suggested, again, you see around 1900. Okay, so Planck's modified the Wien's formula. Okay, and what he considered the energy is quantized and it is given in the form of this h nu. ठीक है, nh nu. If number of photons are there, then it is written as nh nu. ठीक है, h nu is the photon energy, one photon energy. n लगाया है, that means number of photons को multiply कर दिया उससे, so that will give you the total energy. Then एवरेज एनर्जी. सो ये सारा का पार्ट आपके काम का नहीं है फिलहाल, 9.222 तो अभी इसके आपके सिलेबस का रिक्वायरमेंट नहीं है. बट लेट्स कम टू दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला, आर यू अवेयर विद दिस? ये देखा हुआ है? Yes, sir. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव Yes, यूज्ड sir. विद लेजर फिजिक्स. ठीक है, Yes. यस. तो ये भी सब कुछ आपका बेसिक क्लियर है काफी सारा. नाउ हियर कम्स द पिक्चर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. सो दिस आल्सो यू नो वेरी वेल. ठीक है, दैट ये पढ़ा है ये भी अर्लियर क्लासेस में. Yes, Light sir. can also behave as a Yes, particle. sir. Wave nature and particle nature. Yes, exactly. So this part also I am skipping it क्योंकि आपको आता है ये वाला पार्ट. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम्स अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट फॉर द क्लास क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट. And these are quantum number etc. You know very well, right? So we'll directly come to this de Broglie hypothesis. Okay, and this matter wave etc. also. So de Broglie hypothesis, what it suggests that if you can, right, basically क्या आता है, this is the formula we are going to get with this de Broglie hypothesis, lambda equal to h over p. What is said is you can find out a relation between the wave's wavelength and the particle's momentum. So this de Broglie hypothesis is very, very important in the case of quantum mechanics part, and it is very simple. This formula is very simple, but why it is important? Because it is connecting two different frames. As you said, you know, now you only said that it's a dual nature. लाइट का ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल भी बिहेव करता है, वेव जैसे भी बिहेव करता है. So that dual nature, how they are connecting with this. So de Broglie suggested this formula to connect between these two. So lambda is the wavelength of wave, p is the momentum of particle. So ये वेव नेचर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल नेचर को इंडिकेट कर रहा है बिकॉज देयर इज अ मोमेंटम. सो दीज टू नेचर्स वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस डी ब्रोगली फॉर्मूला हाइपोथेसिस के थ्रू. ठीक है, ये चीज पढ़ी हुई है आपने, बट जस्ट मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन दिस हाइपोथेसिस पार्ट. ओके, सो इट इज कनेक्टिंग बिटवीन दीज टू, मोमेंटम एंड वेवलेंथ. So the another one, wave packet. This is also one such things you may be knowing that. तो जो भी आपका वेव मूव करेगा वो एक पैकेट के फॉर्म में पूरा एनर्जी कैरी करता है. तो दिस इज जस्ट एन आइडियल वेव पैकेट, एक एक्सपेक्ट करके बताया, ये पूरा वेव जनरेट हो रहा है एंड व्हेनेवर ए वेव कैरी फॉरवर्ड सो इट कैरीज द एनर्जीज अलोंग विथ इट. सो ये पैकेट के फॉर्म में पूरा मूव करता है जनरली. सो दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ वेव पैकेट. बट अगेन कुछ डाउट है? यस सर. हाँ बोलो. सर वेव पैकेट शॉर्ट में एक बार जल्दी से बता दीजिए. अरे मतलब ये कुछ नहीं है, मैं फिर से इसमें कंटेंट ही बता देता हूँ. लुक एट हियर, द वेव associated with a particle. You said na that dual nature is there even in nature also. So in each and every case, suppose if you see the wavelength, then there must be corresponding to some momentum also. ठीक है, पार्टिकल नेचर भी वो एग्जिस्ट करेगा, बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट और कैन सी इट विद द नेकेड आई बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज वेरी मिनिमम. अदरवाइज सपोज यू आर हैविंग सर्टेन लेंथ, राइट, तो आपके करस्पॉन्डिंग भी कुछ आप निकाल सकते हो डेटा. विल हैव सम न्यूमेरिकल्स, विल डिस्कस इट आउट एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकालेंगे. सो द वेव associated with a particle in motion can only be represented by a wave disturbance. ये जो वेव आपको दिख रहा है, सपोज ये वेव आपका मूवमेंट दिख रहा है पूरा जिगजैग में, इस हिसाब से कुछ मूव कर रहा है, तो ये जो पूरा एनर्जी कैरी करता है पैकेट के फॉर्म में कैरी करता है इस टाइप से. तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इज अ वेव पैकेट. ठीक है, यानी उसके जो वाइब्रेट करने के जो डिस्टर्बेंस है, जितने भी जिस भी हिसाब से वेव आपका डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बेंस जनरेट हो रहा है, वो पूरा एक एनर्जी के फॉर्म में कैरी करता है पैकेट के थ्रू. सो वी आर कंसिडरिंग एज अ पैकेट, कंप्लीट पैकेज. ठीक है कुछ नहीं, इसका मीनिंग भाई ये देखो, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव
that is confined to a small region of space around the particle. ये पार्टिकल आपका यहाँ पे बीच में था, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्लैक कलर का डॉट, तो ये पार्टिकल है सपोज, तो उस हर एक का अपना अपना एक उसके साथ कुछ एसोसिएटेड वेव भी होगा, तो वो वेव जो है वो एक पैकेट के फॉर्म में आपका कंसीडर करते हैं पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर है अभी? Yes. एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, तो हो सकता है उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी से आ जाए समझ में। Anyway, now the important thing is to understand the quantum mechanics part, again this relation, de Broglie-Veblen part. Okay, and if you remember in one of the tutorial we considered this formula E equal to PC. Yeah, I think 7th tutorial or 8th tutorial somewhere we considered this formula E Yes, equal sir. to PC, and someone asked also कि सर ये E equal to PC कैसे possible है? So it is all from the relativity. ठीक है, so relativistic formula if you apply and you consider the zero rest mass particle, then we are getting this E equal to P या PC formula. P is the momentum, C is the speed of light. Why C we have considered? Because we are talking about the relativistic case. And relativistic case में क्या होता है? The speed will be equal with speed of light only. The speed of the particle is comparable with the speed of light, and that is what we are written like this. ठीक है? So another thing is this energy can also be written as h nu, because we know that energy is quantized, so I can write as a h nu, or sometimes you can also write it down as h cross omega. ये पता है h cross omega कैसे आया? Yes. ठीक है, यू हैव सिंपली, ये जो h nu था आपका, इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया किससे? 2 पाई से। 2 पाई से आप दोनों चीज कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो h बाई 2 पाई जो फैक्टर दिख रहा है इसको मैं बोलूंगा h क्रॉस, ठीक है, या एच कट भी बोलते हैं, और ये जो 2 पाई इंटू न्यू दिख रहा है वो हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो लाइक दैट यू कैन इजीली राइट इट डाउन, सो आइदर एच न्यू और यू कैन राइट एज एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, H cross तो अभी h/2 लिखते हैं ना, हाँ एच बाई टू पाई किया ना, ये दिख तो रहा है। h/2 से। नहीं नहीं, एच बाई टू नहीं होता, एच बाई टू पाई होता है, तब वो एच क्रॉस बनता है। वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो तो उसमें बता रहे हो आप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उसमें हम लोग लिखते हैं एच क्रॉस बाई टू, Yes, yes. वो अलग है। ये क्लियर है अभी कैसे कंसिडर करेंगे? बिकॉज ऑल सच रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू यूज। नाउ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग quantum mechanics is very difficult, people are finding, but my purpose over is to make it simple. Okay, and that is what, and I also told you one thing, if you take the basic structure from the classical mechanics side, then framing in the quantum mechanics will be very simple, and that's what we are trying to do. तो जो एनर्जी मेरे पास था क्लासिकली, क्लासिकल एनर्जी कितना होता है as per the classical mechanics? What will be the energy of a particle? Kinetic energy, mc square. हाँ यस यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, या पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हो Yeah. अगर मोमेंटम के टर्म में लिखना है, ठीक है, प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी जितना है वी, इस टाइप से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला एनर्जी का। दिस इज एज पर द क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल, राइट? नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज पोटेंशियल में दिस। सिर्फ V या mgh नहीं होगा पोटेंशियल में? ये वी वेरी करता है, पोटेंशियल आपका जो एनर्जी है वो जनरली जो आप बोल रहे हो ना वो केवल पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। वो मान के चल रहे हैं सर। हाँ, जो आप केवल mgh बोल रहे हो ना वो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इट कैन टेक एनी फॉर्म। तो अभी इसको मैंने एग्जैक्ट पूरा फॉर्म डिफाइन नहीं किया, ये v जो है आपके कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एंड दिस फॉर्मेट कैन बी वेरिएबल। कहीं पे आपको लगेगा, कहीं पे आपको v, आई मीन v के अलग अलग फॉर्मूलेस आपको मिलेंगे, ठीक है, विल डिस्कस इट दिस ऑल्सो कि v की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। समटाइम्स e की पावर में भी आपको मिल सकता है v की वैल्यू, समटाइम्स कुछ नंबर भी मिल सकता है, सो दैट ऑल वी कैन डिस्कस इट फ्रॉम अनदर बुक, ठीक है, v क्या क्या हो सकता है, विल कवर इट, नो वरीज, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि v कितना होगा, किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, सो वी आर सिंपली राइटिंग द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड जो हमने कई बार देखा है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस v, ये फॉर्मूला आपने कई जगह पे पढ़ा होगा इन द क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, यहाँ तक ये चीज? Yes, sir. Yes, Okay. sir. बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है ना? भाई मैंने क्या बोला? Potential energy can be in or different formula. Like if you have say an electric field, उसमें electric charge पड़ा है, तो उसका electric potential energy भी तो हो सकता है।
हाँ That's why it's generalized. इसीलिए इसीलिए तो मैंने उसको जनरलाइज लिखा वी। आई हैव नेवर रिटर्न द कंप्लीट फॉर्मूला। उसका आप एक जगह पे एमजीएच लिख सकते हो, नो डाउट। जब यहाँ पे जी इन्वॉल्व है तो एमजीएच करके लिख दो। एक जिसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपको फिर लिखना पड़ेगा। सो वी कैन टेक एनी फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द केस कि आप उसको कहाँ पे अप्लाई करते हो, किस केस में अप्लाई करते हो। हाँ बोलो, कुछ और डाउट है? नो सर, थैंक यू सर। या विल कम टू दिस, ये सारे फॉर्म में आपको दिखा दूंगा। देर इज वन बुक आई सजेस्टेड टू यू पीपल, ओके, जे डिवीजन में मैंने सजेस्ट किया था, आप एन वाले अभी नए हो तो यू जस्ट चेक इट आउट, क्वांटम मैकेनिक्स बाय नूरा डाइस जेटली। इन दैट यू कैन फाइंड ए वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। एंड देयर यू कैन रियलाइज कि समटाइम्स वी की वैल्यू एमजीएच भी होगी, समटाइम्स वो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में भी आप Can you, sir, can you repeat that? बुक नेम? Yeah. हाँ हाँ, इट इज नूरा डाइस जेटली। चैट बॉक्स में लिख दो। मैं एक बुक ही खोल के बता दूंगा आपको, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में किस टाइप का कवर है, तो वो आप देख के पूरा नाम और उसका ऑथर का नेम सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। कमिंग टू दिस, ये चीज क्लियर है आपको, राइट? दैट एनर्जी यू कैन राइट एज आइदर एच न्यू और एच क्रॉस ओमेगा। सिमिलरली मोमेंटम, विद दिस मोमेंटम ऐसे लिख सकता हूँ, और बेसिकली ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये करो या ये करो, आपको ये पता ही है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डूइंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ओवर हेयर, ये एनर्जी जो है ना, ये पार्टिकल की एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ है वेव का, पी क्या है, मोमेंटम है पार्टिकल का। सो विद दिस टू, आर यू गेटिंग द पर्पस? एनर्जी पार्टिकल की है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि वेव का है। सिमिलरली हेयर वेवलेंथ वेव का है, और p जो है मोमेंटम है वो पार्टिकल का है। सो वी आर विद दिस हाइपोथेसिस डी ब्रोगली पार्ट, वी आर ट्राइंग टू रिलेट विद दिस टू क्लासिकल एंड क्वांटम पार्ट, ठीक है। तो ये लिंकिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के थ्रू, फॉर्मूलाज के थ्रू। कैसे करेंगे वो यहाँ पे लिखा है, ये और देख लो आप। यहाँ पे लेमडा को मैं एच ओवर पी लिख सकता हूँ, और पी इक्वल टू कितना होता है एम वी, और डिफाइन कर लो वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई एच भी लिख सकते हैं। ये सब सिंप्लीफाई किया है। विल डायरेक्टली कम टू द फाइनल पार्ट। ये दो चीज आपको याद रखनी है बस, ई की वैल्यू और ये लेमडा की वैल्यू, समवेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेम, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये दीज आर द टू वी आर रेफर्ड एज डी ब्रोगली रिलेशंस। तो समटाइम्स आपने केवल एक ही पढ़ा है, लेमडा इक्वल टू एच ओवर पी, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस पीपल आर कंसिडरिंग, ठीक है। एंड इन दैट केस द लेमडा इज गोइंग टू बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पार्टिकल के साथ में रिलेट किया है नाउ, ठीक है। ये देखो वी की वैल्यू कहीं पे लिखा ही था, वी वोल्ट्स, यहाँ पे देखो वो वोल्ट्स के फॉर्म में आपने लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, उस हिसाब से आपकी वैल्यू सारी चेंज होगी, एनर्जी एटसेट्रा। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपने वेल स्टैब्लिश्ड है। वेवलेंथ के साथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो हाउ इट विल वेरी, ये पढ़ा है 9.11 में जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था हमने 7 या 8 नंबर ट्यूटोरियल में। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, लेट्स कम टू दिस। ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, ओके, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, बट वो अभी आप छोड़ सकते हो। वो तो ये तो syllabus- वेव ऑप्टिक्स वाला था ना एक्सपेरिमेंट? कौन सा ये? नहीं नहीं, हाँ। इलेक्ट्रॉन वाला था। नहीं नहीं, वेव ऑप्टिक्स का नहीं, इलेक्ट्रॉन वाला था। अरे तो हो गया मतलब 12th में। सर ये एनसीईआरटी में दिया था ना इसलिए। हाँ हाँ, ये होगा बिल्कुल, ये अर्लियर क्लासेस में दिए है वो, क्योंकि ये कंफर्म करता है उसका इलेक्ट्रॉन का नेचर, पार्टिकल का नेचर कंफर्म करता है। तो ये डेफिनेटली आपने 11th-12th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। कोई नहीं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। 56 वोल्ट वाला कुछ आता है। यस, इवन दिस थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको अभी नहीं करना है, आपके सिलेबस में ये भी नहीं है। आई विल डायरेक्टली कम टू द, हाँ बोलो सॉरी, करप्शन के लिए। क्या हुआ, ये भी आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो जो काम की चीजें, कौन सी बुक है? हाँ मैं बता दूंगा, बुक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये टाइटल दिख रहा है आपको, ये बुक का जो कंटेंट है वो इस बुक से है, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय जी अरुल दास। क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स में ढूंढ। हाँ ठीक है, तो ये जो अच्छा, जहाँ पे अच्छे से कंटेंट दिया है, जहाँ पे आपको इजी समझ में जाए, आई विल ट्राइंग टू प्रेफर दैट पर्टिकुलर बुक। एनीवे, दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आई होप यू आर अवेयर विद दिस ऑल्सो, यस सर। ठीक है। सो देर आर 3, वन इज दिस स्पेस एंड मोमेंटम, ठीक है, एंड देन फ्यू मोर, एनर्जी एंड टाइम, वो भी हमने देखा था लेजर के केस में। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यू नो वेरी वेल, तो ये भी मैं अभी जाने देता हूँ, यहाँ पे इतना काम का नहीं है फिलहाल।
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ये आप चाहो तो देख सकते हो, उसका मैथमेटिकल प्रूफ है कैसे डिफाइन करेंगे। अनसर्टेनिटी, ये भी आप देखना चाहो तो देख लो। दोज हु आर इंटरेस्टेड और इन लेजर फिजिक्स, मेनी ऑफ द टाइम्स यू पीपल मे बी वंडरिंग कि हाउ दिस 10⁻⁸ फैक्टर इज कमिंग आउट। ध्यान है, लेजर में हमने डिस्कस किया था द लाइफ टाइम ऑफ द अपर लेवल इज Yes, sir. अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड। तो वो कैसे आया, वो यहाँ से आप इस वाली हेडिंग से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर 12th में तो मतलब 10⁻⁹ आता था, ये टाउ हुई। तो थोड़ा बहुत सी अगेन, ये कैसा है कि आप 10 नैनो सेकेंड बोल दो, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एग्जैक्टली, बट वैसे भी सर अलग अलग बुक में थोड़ा तो वेरिएशन होता है ना। हाँ थोड़ा भी। और सी एक ये तो एक अप्रोक्सीमेट इसीलिए तो लिखा है, देखो आगे इक्वल नहीं लिखा है, अप्रोक्सीमेट है। तो मान लो ये 1 नैनो सेकेंड के बजाय 10 नैनो सेकेंड हो जाए तो 10 नैनो सेकेंड तो यही होगा, ठीक है। तो टाइम इंटरवल 1 नैनो सेकेंड 10 नैनो सेकेंड इतना तो पॉसिबल है, इसलिए तो उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखा है। सो इसीलिए मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी कभी बोला ही होगा कि इट मे बी अराउंड इन नैनो सेकेंड समटाइम्स 10⁻⁸ और -9, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी विड्थ पे। ये किसी ने भी अच्छा सा पॉइंट आउट किया, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी विड्थ दिस कैन बी कंट्रोलेबल, ये कम ज्यादा हो सकता है। वो कैसे होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था उस टाइम पे भी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लाइफ टाइम कितना होना चाहिए उस लेवल का, वो यहाँ से आप सारा कंट्रोलेबल है। एनीवे ये आप देख लेना। नाउ कमिंग टू दिस डायरेक्ट मेन थिंग्स, द वेव फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज द starting of the quantum mechanics, okay, and people are saying that if you want to understand the quantum mechanics in depth, you must know the wave function of the particle. So this is the starting point from which you can generate all the relevant information applicable in the quantum mechanics, ठीक है। बट कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको हिंट देता हूं। लेट्स अगेन कम बैक टू द क्लासिकल फिजिक्स साइड, ठीक है। तो इफ यू हैव ए पार्टिकल, classical particle if you have, can you write down the displacement? Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट? S equals to ut plus half at square. हाँ उस सेंस में, या एक वो भी बराबर है, दूसरा E एक, y equal to a sin omega t ऐसा। हाँ यस यस, ये सही डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर आप लिखो तो लिख सकते हो, वो भी आपके ऊपर है, लिख सकते हैं इसी टाइप से डिस्प्लेसमेंट यस क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। समटाइम्स आप कॉस में भी लिख सकते हो, बाय नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। So that is how you talk about the classical particle, and then based on that you find different parameters also. So similarly in the classical mechanics, ये तो आपने लिखा, but similarly in the quantum mechanics also you need to describe such kind of displacement. I am not saying displacement, I am just taking the reference from the classical mechanics side, ठीक है। और उसको यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को बोलते हैं वेव फंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट इसके जैसे बिहेव करेगा। तो मैंने क्या किया, उसको पाई कंसिडर किया, जनरली पाई से इंडिकेट करते हैं वेव फंक्शन को, या साई से, सॉरी पाई भी नहीं, साई प्रेफर करते हैं। इस टाइप का एक सिंबल बनता है साई, ठीक है। देन सेम इसी टोन में आपको लिखना है, साई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साई नॉट, ये उसका एम्पलीट्यूड इंडिकेट कर रहा है। देन यू विल बी राइटिंग साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी फाई समथिंग। सो इंस्टेड ऑफ साइन और कॉस मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल गो विद दिस e टू द पावर i फॉर्मेट। तो e टू द पावर i, ठीक है, वो जो ये पूरा क्वांटिटी आपका थीटा है तो आप इसे थीटा के फॉर्मेट में लिख लो। सपोज ये पूरा अगर मेरा थीटा है तो कैन यू राइट इट डाउन इन दिस ऑर्डर, कर सकते हैं? Yes, sir. यस तो सर मैंने क्वांटम मैकेनिकली यही चेंज किया, हेल्प ली किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स से, जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो, और उसी के हिसाब से मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में इसको लिख दिया, ठीक है। साई के फॉर्म में लिखा और फॉर्मेट ऑलमोस्ट मैंने सिमिलर ही कंसिडर किया। सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट फ्रॉम द एग्जैक्ट बुक। क्या किया देखो, ये रहा साई, या तो साई स्टोर साइज नोट कर लो, या फिर एम्पलीट्यूड लिखना है तो सीधे ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर, एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन यू सी e टू द पावर i, और वो जितना भी आपने एंगल ऊपर देखा था ओमेगा टी प्लस फाई और समथिंग या माइनस फाई, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट एज दिस वन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कर सकता हूं मैं अभी? Yes, sir. सो दिस इज व्हाट यू सी, ये लाइन देखो, लास्ट वाला क्या लिखा है, ए फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ डिफाइनाइट मोमेंटम इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्लेन वेव। तो जो हमने ऊपर लिखा था ना कि ड्यूअल नेचर वाला जो है, कि अगर पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर होगा, वेव है तो उसका
particle nature होगा. So if a free particle is there, then corresponding the wave nature we can write in this order. ठीक है, रिप्रेजेंट किया साई से, a is the amplitude and e to the power I kx minus omega t. हाँ यस 35 यस, रोल नंबर 35 आई में n डिवीजन में कुछ डाउट है? एनीवे लुक एट हियर अगेन, Sir? kx माइन, हाँ यस बोलो. सर ये तो मतलब वो स्टैंडिंग वेव जैसा नहीं हो गया? हाँ, वही है. माइनस ओमेगा टी टाइप. यस वही है स्टैंडिंग वेव्स. डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, इसको मैं यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये इसका रेफरेंस दे रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है. तो स्टैंडिंग वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही है, नथिंग एल्स. Sir, I had a question. में जो भी होता है वो सब स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ? यस. ओके. हाँ बोलो, और किसी को डाउट था बोलो. Yes, sir. Where does this equation come from? Is there any derivation for it? हाँ, इसका अगर मैं आपको, I don't care if we have to learn it or not. I just want to know. हाँ यस, मैंने इसीलिए तो आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखते हो उसके हिसाब से ही यहाँ पे इसको उसका प्लेन वेव कंसिडर किया है. इसलिए तो मैंने आपको ऊपर वो बताया था, ये वाला फॉर्मूला. आप बोल रहे हो ना कहाँ से आया, तो इसी अप्रोच के साथ. इफ यू वांट टू राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट फॉर द क्लासिकल पार्टिकल, तो इस टाइप से मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और जो भी कंपोनेंट आप कंसिडर करो उसमें के एक्स प्लस ओमेगा टी. ओके, एंड ये सारी चीज, तो वो वही चीज मैंने यहाँ पे कंसिडर की है. इंस्टेड ऑफ साइन और कॉस, क्योंकि वेव के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो इट कैन मूव पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, इट कैन मूव नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड आल्सो. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव कंसिडर्ड e to the power I theta. So I have taken the reference from this only, यहाँ से classical mechanics. Yes, sir. That is all right. What I'm saying is like, for example, this equation y naught sine omega t plus phi, even that had a derivation, which was not actually taught to us, but that exists. So I'm asking, like, is there any derivation for this? हाँ, but the derivation you already have completed in the 11th or 12th ना. ये y equal to y naught, so in Sir, omega t yeah, कैसे आया, for तो आपने not- कर लिया होगा. हाँ बोलो. मतलब वो ठीक है. I'm asking, इसके लिए derivation है कि नहीं है? नहीं है. Or is this a fundamental formula? हाँ नहीं है, इसके लिए डेरिवेशन ये डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इसके रेफरेंस से. ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना होगा तो आपको 11th 12th में है ही, तो वो चीज यहाँ पे कवर नहीं क्यों, क्योंकि वो फिर रिपीट होता है वो का वही कंटेंट. तो ये चीज कहाँ से आया, ये आपको 11th 12th की बुक में आपने पढ़ के आया. ये डिस्प्लेसमेंट आपने ही लिखा था, आपने ही बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, देन वी कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट एज पर दिस ऑर्डर. एंड इवन इफ यू वांट कि आपको e to the power के i के फॉर्म में नहीं लिखना है, देन फाइन, यू राइट इट डाउन सेपरेटली, y psi इक्वल टू a साइन, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी, दैट आल्सो यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, ये इमेजिनरी और रियल दोनों कंपोनेंट को सी, व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, क्वांटम मैकेनिक्स के जब डेप्थ में जाते हैं, राइट, तो दैट देन इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बोथ द रियल एज वेल एज इमेजिनरी कंपोनेंट, and that is why they have considered in the beginning itself. So depending on the case, they consider the real factor or they consider the imaginary one, but in the beginning you consider as e to the power I. सर That is इसको preferable. ओपन करेंगे तो फिर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा वाले फॉर्म में नहीं ओपन होगा? हाँ आएगा ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, आएगा. तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, आई डोंट नो मैथमेटिक्स में आपने कितना पढ़ा, बट मैथमेटिक्स में जनरली यही फॉर्मेट लेके कंसिडर करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द केस कि उसने क्या पूछा है न्यूमेरिकल में, देन वी कंसिडर द रियल पार्ट ऑफ दिस, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, और वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. सपोज रियल है तो रियल पार्ट भी आर कंसिडरिंग, इमेजिनरी को स्किप कर दिया. ठीक है, न्यूमेरिकली के हिसाब से. तो सेम वे वो आप कर सकते हो क्राइटेरिया अप्लाई करके कि यू आर इंटरेस्टेड इन द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन और यू आर इंटरेस्टेड इन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट, यू कंसिडर अलोंग दैट. Are you getting the purpose? But at this moment, I don't know whether this real part I am going to use in the later on, or I am going to talk about the imaginary part. So it is the good idea to consider both in the beginning. हाँ मतलब ये इमेजिनरी पार्ट वेव में आया, ये मतलब थोड़ा हजम नहीं हो रहा. हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा. विल टॉक अबाउट इट. इसका डेरिवेशन जब देखेंगे वो थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, यू विल कम सर टू नो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. हाँ लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है, कोई हाँ. गलत नहीं है, लिख सकते हैं. राइट, अभी क्लियर है ये चीज. ये केवल Yes, sir. मैथमेटिकली चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, दैट्स व्हाट वी रिटर्न इन e to the power I. आपको साइन कॉस लिखना है, देन यू राइट बोथ द कंपोनेंट्स, कॉस थीटा भी लिखना है प्लस साइन थीटा भी, तो इसको क्या हो जाएगा, cos kx माइनस ओमेगा टी
प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ए तो दोनों में ही ये प्रोडक्ट है उसके साथ, तो ये तो मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ होगा। यू कैन राइट दैट ऑल्सो। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, लेट्स कम टू द अनदर वन. So this is again I am focusing on this line. This is corresponding to a free particle which is moving along the x-axis with a definite momentum is described by the plane wave. जैसे कि वो पैकेट आपने ऊपर पढ़ा था ना, ये अगर पार्टिकल है तो उसका जो corresponding वेव एसोसिएटेड होगा वो कुछ आपने इस टाइप से दिया था और उसको हमने बोला था पूरा पैकेट के फॉर्म में आपका मूव करता है. So that's what it is. ये फ्री पार्टिकल है मूविंग along x-axis and that is the reason we are writing as plus kx. ठीक है, if it is moving to the negative x-axis, so we will be writing as minus kx. So by looking to the value of this particular equation, you will come to know whether your wave or I mean the wave which is moving along x-axis or minus x-axis. Is this clear? kx वाले पार्ट से आपको देख के पता लग जाएगा it is flowing towards x-axis or negative x-axis. Similarly, y, z जो axis आप consider करना चाहो that can be possible. Anyway, what is k? Sometimes people are calling it as a wave vector. Sometimes people are calling it as a propagation constant also. So both are same. Omega is the angular frequency. और अगर 3D में try करोगे, so in 3D case instead of x you can write as r. ये possible है आपसे, ये हो पाएगा? ये वाला जो केस है this is in 1D, this is in the 3D case. ठीक है, क्योंकि r कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? r xi plus yj plus z के तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. So here you can write as r. Yes, sir. Fine. Okay, let me come to the then next. This is the main important part. Okay, time dependent Schrodinger equation. So just like, so अभी आपने क्या किया, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता था पार्टिकल का, like that you have defined wave function in the quantum mechanics. Now slowly we are developing the frame, right? Some formula, some reference set for the quantum mechanics. So just like in the classical mechanics, you have equation of motion. है हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे क्लासिकल मैकेनिक्स में. Yes, So sir. similarly we also want to try to write it down for the quantum mechanics part, and एक रेफरेंस में हम लोग फिर कंसिडर करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. Actually Schrodinger is the scientist, okay, who gave two different equations. One is time dependent, another one is time independent. ठीक है, so let's focus on the time dependent here, and then at the later on we'll focus on the time independent also. So these are the two equations which is given in the quantum mechanics. जैसे वहां पे तीन थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं और वो श्रोडिंगर ने दिए थे. जैसे वो न्यूटन्स ने दिए थे, राइट, हम लोग बोलते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, वो न्यूटन्स ने दिए थे, यहाँ पे ये आपको श्रोडिंगर ने प्रोवाइड किए. So coming to this again, the same thing, wave function है आपका starting point, okay, lambda और ये formula भी आपके पास है. These two formulas we are going to consider, and here is the starting point of the derivation. ठीक है, कैसे करते हैं? So free particle wave equation in one dimension. So a particle moving along the x-axis with a definite momentum is described by the infinite plane wave, and this is the formula we use to see it. लिख सकते हैं अभी? ये अभी क्लियर हो गया कहां से आया? ये स्टैंडर्ड है, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है, दिस इज द बेस पॉइंट जहां से आपको ये कंसिडर करके स्टार्ट करना है. ठीक है, और 1D है इसलिए kx लिखा है, 3D करोगे तो kr. फाइन, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ लेट्स मूव इट. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू दैट दिस इज corresponding टू द वेव राइट नाउ. साई जो है वो वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, and I told you that if you are interested in finding out the energy and momentum of the particle in the quantum physics also, okay, so then you need to take the help of classical one. Are you getting this point? Yes, अगर sir. आपको क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी एनर्जी मोमेंटम फाइंड आउट करना है, देन वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग वन, क्लासिकल के अंदर जो था. तो इसके अंदर अगर मैं देखूं केयरफुली तो दो ही चीज मुझे लग रही है जो मैं चेंज कर सकता हूँ. वन इज के, अनदर वन इज ओमेगा. और मुझे किसके फॉर्मेट में रखना है? क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्मेट में. के क्या है? अगेन वेव वेक्टर. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दोनों वेव, ये पूरा वेव के लिए लिखा है हुआ है पूरा, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दिस वेव कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद द क्लासिकल कंपोनेंट. व्हाट आर द क्लासिकल कंपोनेंट? मोमेंटम एंड एनर्जी. दैट मीन्स ये जो के है ना, के को आपको रिप्लेस करना है पी से, और ये जो ओमेगा है उसको आपको रिप्लेस करना है ई के साथ में.
सो नाउ यू रिक्वायर्ड डी ब्रोगली रिलेशन ओवर हेयर, उसके थ्रू आप यहाँ पे के और ओमेगा की वैल्यू चेंज कर दो. व्हाई वी आर चेंजिंग, नाउ यू नो द पर्पस. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा. दिस एंटायर थिंग इज फॉर द वेव, बट सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी एंड मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल मैकेनिक्स पार्ट, उसके हेल्प लेके, रेफरेंस लेके, सो दीज पैरामीटर्स जो है वेव के, वो मुझे एनर्जी और मोमेंटम से रिप्लेस करने हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में वेल स्टैब्लिश्ड है. मोमेंटम आपको पता है कितना होता है mv, एनर्जी आपको पता है कितना होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस v, जो भी है p स्क्वायर बाय 2m करके. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो k और ओमेगा मुझे चेंज करना है. देखो यहाँ पे कर सकता हूं मैं ऐसा. k कितना होता है 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है. लेमडा कितना होता है h बाई p, वो वैल्यूज रख दी और k को इस तरह से रिप्लेस कर दिया. ओमेगा ये पता ही है आपको, ओमेगा को मैं e बाई h क्रॉस रख सकता हूँ. इज दिस क्लियर, दिस पॉइंट? Yes. ये मैंने यहाँ पे रख दिया सेम. क्यों रखा, वो पर्पस मैंने आपको क्लियर कर दिया. फाइन. तो आप वी आर गेटिंग अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक आपको आ गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड t. इफ यू सी द साई, हम लोग डिराइव क्या कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट, एंड इसीलिए साई के अंदर टी वाला फैक्टर भी है, यानी जो साई है आपका वेव फंक्शन, वो टी टाइम पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. सो दो पैरामीटर्स है जिसपे साई डिपेंड करता है. वन इज द स्पेस कंपोनेंट, सेकेंड इज द टाइम कंपोनेंट. ठीक है. सो two variables are there. Now what you have to do is you have to differentiate with respect to both one by one. So सबसे पहले कर दो इसको x के रिस्पेक्ट में. ये मिलेगा कुछ ऐसा? Yes. करके देखो जरा, क्लियर है ये चीज? कर पाओगे ये वाला स्टेप? Yes, sir. ये पूरा क्वांटिटी वापस से साई हुआ यहाँ से, तो उसको अगेन साई के फॉर्म में वापस प्लेस कर दिया. इज दिस क्लियर? ओके. लेट्स कम टू द अनदर वन. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया, इसको थोड़ा और. तो मैंने क्या किया, ये वाले टर्म को देखो, पी साई को केवल इधर ही रखा, बाकी जो कंपोनेंट है आई बाई एच क्रॉस, उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया अपोजिट साइड में. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर स्टेप यू नीड टू कीप इन माइंड. व्हेनेवर यू सी आई इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आई को जनरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि आई को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं. तो उसको वापस से आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो एंड ब्रिंग इट ऑन द न्यूमरेटर साइड. तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर हो गया -1 और ऊपर क्या आ जाएगा आई. तो इसको मैं माइनस आई करके लिखा है, देखो. ये क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes. ओके. तो ये स्टैंडर्ड सर, प्रैक्टिस है. हाँ बोलो. इसमें जो श्रोडिंगर सिंबल है वो अपने को मतलब दिखा था क्या है, वो वेवलेंथ है या ऐसा क्या है वो? मैं वही तो बता रहा हूँ, वेव फंक्शन उसको नाम देते हैं. ये जो साई है ना आपका, ये साई, ये वेव फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. जैसे डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करोगे आप, तो फिर बाकी सारी चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके आप निकाल लेते हो, राइट? वेलोसिटी निकाल ली, फिर वेलोसिटी निकल जाएगी तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो, फिर मोमेंटम निकल गया तो आप एनर्जी निकाल सकते हो. सो दैट ओरिजिनल पॉइंट विल बी साई. ओके. So can you मुझे give a definition for psi? सॉरी, क्या हुआ? Can you give a definition for it? हाँ, ये लिखा ही है यहाँ पे. जाओ वापस, यहीं पे कहीं पे लिखा ही था हमने साई का. ये So we can say that psi is a Wait. variable which shows the probability of any electron in any orbit. ये देखो, मैं फिर से बता देता हूँ. हाँ, वो प्रोबेबिलिटी वाला तो अलग केस आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट ये देखो, ये यहाँ पे सारी चीज वही लिखी ना. इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन. अभी क्लियर है ये चीज? तो मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा किसी भी चीज का. हाँ, यस यस. तो मैं वही तो आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि वो पार्टिकल को ट्रेस करना है आपको, तो उस मोमेंट पे कितने टाइम पे कितने कौन से कोऑर्डिनेट्स पे, स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे आपको पार्टिकल मिल सकता है. प्रोबेबिलिटी उसकी अलग है. प्रोबेबिलिटी के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साई स्टार साई, अनदर फैक्टर है विच वी विल डिस्कस आउट मे बी इन द अपकमिंग लेक्चर्स. बट इज दिस क्लियर नाउ? साई है क्या चीज? Yes. हाँ मतलब वो हाँ बोलो, अभी और कुछ डाउट था किसी को? नो. ठीक है. तो सिंस वी हैव 1 or 2 more minutes, तो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है. ये आपने डिफरेंशिएट किया, सो वी आर गेटिंग दिस 9.29. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लुक एट वन मोर थिंग. ठीक है. ये यहाँ पे लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है मैथमेटिकल पार्ट में, और वो रट के जाते हैं. हमें रटना नहीं, हमें समझ के करना है. ठीक है. पी आ गया आपके पास. पी क्या था? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, रिमेंबर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है ये चीज?
नाउ व्हाट इज द एनर्जी? अगर जनरली मैं अगर एनर्जी कंसीडर करूं क्लासिकल पार्टिकल की तो कितना होता है पी स्क्वायर बाई 2m Yes, sir. प्लस v। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे जीरो कंसिडर की है, क्यों? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग एज अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मींस देयर इज नो बाउंड्री ऑन दैट, और अगर बाउंड्री कुछ अप्लाई नहीं होगी दैट मींस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो इन सच केसेस। ठीक है, जैसे सिंपल आप क्लास के अंदर हो और मैं कोई फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए, यानी आपके ऊपर कोई बाउंड्री इंपोज नहीं है, कुछ भी, यू आर फ्री टू डू सो, कुछ भी आप कर सकते हो, क्लास से जंप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, राइट, मस्ती कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। तो उस केस में आपका जो आई मीन वी वाला फैक्टर है पूरा, राइट, क्योंकि आपके ऊपर कोई बाउंड्री अप्लाई नहीं की है, कोई फोर्स सर अप्लाई वो नहीं किया वी है। एवरेज होगा ना, हाँ वी एवरेज जीरो होगा ना, हाँ, बोल सकते हो, वी एवरेज बोल सकते हो। सर ये क्योंकि क्या उसकी समझ नहीं कुछ आया। ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। नहीं नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वी आपका बाउंड्रीज को इंडिकेट करता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी। सो अगर आप पोटेंशियल मतलब कि वो बैरियर, अगर आप बॉक्स, अगर आप क्लास के ऊपर कोई बैरियर अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, राइट, कोई आपको कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, दैट मींस यू कैन फ्रीली रोम एनीवेयर, एंड दैट्स व्हाट सर वी आर यहाँ पे कॉलिंग एज अ फ्री पार्टिकल। यहाँ यस, पे वो रेफरेंस क्या है, लाइक जीरो पोटेंशियल लाइन क्या कंसीडर की हमने? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ। आपके ऊपर वी मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, जैसे आप क्लास के अंदर आपको मैंने फोर्स किया कि आप 11:10 से 12 का मेरा लेक्चर है, आपको मीटिंग लिंक में नहीं भेजी तो आप आए, ज्वाइन कर लिया, राइट, बट आपका टाइम टेबल में क्लास है और मैं आपको मीटिंग का लिंक ही नहीं भेजूं फॉर एग्जाम्पल। अब इन शॉर्ट उसका एक्सटर्नल फोर्स जीरो मान लिया उसका। एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इज अ फ्री पार्टिकल। फ्री हाँ पार्टिकल मीन्स समझ क्या, कि उस पर कोई फोर्स, कोई बाउंड्री अपने अप्लाई ही नहीं की है, वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर मेरा क्लास का लिंक नहीं जाता है, मीटिंग का लिंक आप लोगों को, राइट, इसका मतलब आप कुछ भी करो ना, एक्स वाई जेड, आपका काम जो करना है। आर यू गेटिंग नाउ? यू हाँ विल बी सर। कंसिडर्ड एज ए फ्री। सो उस केसेस में ये जो वैल्यू है वो जीरो होगा, तो वी आर कंसिडरिंग ओनली पी स्क्वायर बाय 2m फैक्टर। ठीक है, तो नाउ इफ यू सी वी आर गेटिंग दिस पी टर्म, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? अगर मुझे एनर्जी भी लेके आना है तो एनर्जी किस फॉर्मेट में आएगा? मुझे स्क्वायर इसको अपॉन चाहिए, 2m। मुझे स्क्वायर वाला टर्म चाहिए पी का, राइट। आर वी गेटिंग स्क्वायर टर्म ओवर हेयर? नो, नहीं तो लेके आना है तो, लेके आना है तो क्या करूं? स्क्वायर कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन उसके बाद कर देंगे। यस, एक किसी ने स्क्वायर बोला था, स्क्वायर कर दिया तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, आपको आपको वो नहीं करना है। आपको आपका टारगेट बहुत क्लियर है, आपको केवल पी को ही स्क्वायर करना है, बाकी चीजों पे आपको ज्यादा टच नहीं करना है। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो एग्जैक्टली, नहीं वो भी नहीं, डिफरेंशिएट कर दो ना, सिंपल। यू डू वन मोर टाइम। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? ये कंपोनेंट मिलेगा। यस सर। यस सर। ओके, क्यों किया अभी आपको पता लग गया। दूसरी बार डिफरेंशिएट करने का पर्पस क्या है? क्योंकि मुझे एनर्जी के फॉर्म में लेके आना है, पी स्क्वायर बाय 2m बनाना है। अभी 2m तो क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 2m से मल्टीप्लाई कर दो, 2m से डिवाइड कर दो, तो ये फैक्टर आप बना पाओगे, ये वाली चीज। यस सर। Yes, sir. और जैसे पी स्क्वायर बाय 2m दिखता है, वो क्या चीज है आपका? क्लासिकल पार्टिकल की एनर्जी। यू प्लेस इट ओवर हेयर, नीचे वही रख दिया है। तो अभी आप देख लेना, मैंने हिंट दे दिया आपको, ये देखो ये रख दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। टाइम आपका अप हो गया, 2-3 मिनट ऊपर है, तो अगर उसमें कुछ बाकी है तो देन वी में डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और भी किसी को डाउट है तो वो स्टे कनेक्टेड, मैं क्लियर कर देता हूँ, बट अगर किसी को डाउट नहीं है तो देन यू कैन लीव द मीटिंग। ओके सर, थैंक यू। या